Data technology, information science, engineering, these areas of technology. And so thank you for your opportunity to this scholarship. I want to make the parents proud and I'm happy. What should you be remembered for? Let me ask a question. Should you be remembered for? You should decide big things in life. What do you want to be remembered for? I remember I was in My mother. I'm madly in love with my mother, mashallah. She is the mother to so many people, so many children who benefit from the scholarship program. इतनी खुशी तो एक छोटा सा, it's an understatement. खुशी से ज़्यादा जो होता है ना, that feeling which is overwhelming with happiness, because I see so many children in the hard challenges of life, in the hard walks of life, how they are performing, how they are excelling, how they are achieving beyond all those barriers. So I'm sorry I don't come like this, but I was just too overwhelmed with emotion because it is my mother's dara. Speech for mommy, mashallah, mama has spoken from the heart. I Mudassir, he's always been with our association and always gives the best advice to all the children. So you should all avail from his guidance because he is the one who hit it on the nail as to what is the best course for you to take, what is the best avenue for you to follow, and he's always a guiding light for all the students. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay, respected. जो हालात थे, we have all seen it, and in adversity there was opportunity. तो किसी को कुछ काम करना था, अल्लाह ने चुन लिया, खास ये फजल हुआ. तो मैं बोलना यही चाहता हूँ कि जिंदगी में this life, this struggle, and in this whole process, death is a reality. Kullu nafsin za'iqatul maut. So everything which is born has to face death. And in this journey, what we do, our belief system is that हम लोग उसके लिए अकाउंटेबल हैं. अल्लाह ताला हमसे पूछताछ करेगा और उसके बदल में जन्नत का भी एक ये है. To our President Salima Sharif, my dear grandmother, for all of her tireless efforts and for making today possible. She is truly an inspiration to us all. I also extend a very hearty thanks to my dear mother. How did you get 98? How did you get 98? Oh, not. So many congratulations to. Just hold it. Just hold it. Yeah. Can you take from here? We just Sir. तुम्ही करा बोल. Sir. Check mom. Please come this way. Yes. The next student is Mohammed Sami. One handshake. Sir. Sir, इकडे Check. Congratulations, Aisha. Should be it. Congratulations. So we have teachers, we have lawyers, we have doctors. We next have all money there.
lot of money is there. You can fund him in future, sir. All the best. Then we have Ryan Anwar, engineer. Okay, then one. Yeah. Sorry, yeah. What do you want to become? Wow, Asha. You love your parents a lot? You have Sabha summary. Sabha is again 92.83% in 12th and 95% in 10th. Marks are just an indicator, but hard work is required. Thank you. Congratulations, Javeria. I will not read the marks. Marks are there for everybody. Next we have Mehak Banu from, he scored 99% in the POC. Oh, very good. You are a big hand. Next time 100, okay? Sure. Salim Ahmed, Dana. Sania Anwar, doing BA, doctor. Enough. 95%, son of Asir Ahmad Khalil Saab. So, what are you doing? 95. Congratulations. Huh? IAS officer. IAS officer. Are you an IAS aspirant? Thank you. Then we have got Hungary is here, 10,091%, Sadia Ayman. बेटा इधर कर हाँ यस What did you do? बिजनेसमैन है He wants to be a startup founder. Startup. You want to make money? Thank you. Then we have Kangan Sidra. Please give a big round of applause. Congratulations. This is good. Let's call the lawyer, the Joseph's College. Very good. That students are doing law, This guy. are supported, are pushed, but are one. Come here. Are you joining the National Law School? Huh? You must join. What is डॉक्टर सर इधर फिरो इधर इधर 92 and 93. इधर इधर एक मिनट इधर यस Muhammad Taha. all well? And we have some Right, smiles. right. Look here, look here. We're also happy. Smile, please. Nam Kadur. We want to remember you guys because you become very big now. Then we will say, oh, it's such a good Inshallah. Ready? Ah, sir. 1 minute, sir. Yes, sir. Okay. Yes, smile. Go 3-4 shots. Yes, smile, please. तालीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस कदर ज़्यादा है और आप भी कोशिशें हैं कि तलबात आला तालीम हासिल करें तो ये ज़रूर आपकी कोशिश है बड़े पैमाने पर कैसे ये मुमकिन है कि कैसे मिल्लत जो है मिलकर आगे बढ़कर बच्चों की बड़े पैमाने बहुत पर अच्छा सवाल है। इसमें सिर्फ 2-4 लोग नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को ज्वाइन करना है। जो भी हमारी कम्युनिटी के वेल टू डू लोग हैं ना, उनको सब ज्वाइन होके एक प्लेटफॉर्म बना दें, अपनी अपनी जगह से ही करें दें, बट दे शुड डू इट। आज का प्रोग्राम जो है, हम दानिश के स्कॉलरशिप इस बार 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए और अमाउंट, हाँ यहाँ भी देखो बोल रही तो हाँ 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए एंड टोटल अमाउंट जो है 70 lakhs। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर we'll be giving rupees 1 crore of scholarship from Danish and Mike Nature, ठीक है। तो इंशाअल्लाह
we'll be giving 1 crore scholarship from next year. And I have taken my granddaughter Aisha Nayab as the secretary, because you know we have to be prepared for tomorrow and in future. She'll be taking care of it, inshallah. Of all my charities, she'll take care of it. बज़्म-ए-निस्वां और दानिश ये क्या अलग-अलग हैं क्या? नहीं, वो बज़्म-ए-निस्वां अलग है, बट वहाँ भी मोस्टली मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है. The members collect about 50 like that, and I spend almost 2 crores. So there also she is going to be the secretary. Suppose tomorrow, we do not know. This has to continue. हाँ, जो यहाँ पे खासकर नंबर्स ही देखते हैं. जो दानिश में जो है मोस्टली ही इज़ द वन हू हेल्प्स मी अ लॉट. नंबर्स वगैरह फॉर्म जो आते हैं मैं इनके पास भेज देती हूँ. ये जो है सब पढ़ के देख के डिज़र्विंग है जो है. सम दे डोंट हैव good numbers, but the family background we have to consider. किसी का बाप नहीं है, किसी का कुछ है, तो he is the one who takes care of it. And he is a big हम बोलते हैं pillar of strength for me, mashallah. All that he does, and we have started doing it online. Before we used to have a huge gathering, have this function. Now everything is done online. Few students we call, select them and call them, and we have this function. बास तलबा जो है उनके पास टैलेंट होता है, उनके हालात की वजह से वो नंबर्स नहीं ला पाते. तो ऐसे तलबा के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या जो है तैयारियाँ की जा सकती हैं, क्या आप? वो जो है आप लोगों में कुछ ऐसा ये करके ऐसे भी हैं थोड़े, तो वी कैन कंसिडर अबाउट इट. हाँ, कंसिडर किए हैं. कंसिडर किए हैं. तो इस मरतबा जो है ही इज़ द वन. दानिश का से दी गई है, इसका मैं थोड़ा खुलासा कर दूं कि MBBS 61 बच्चों को दिया गया है और हर बच्चे को 35,000 स्कॉलरशिप दी गई है. कुल अमाउंट है 21,35,000. इंजीनियरिंग 47 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, हर बच्चे को 25,000. कुल मिलाकर 11,75,000. और फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो यूनानी आयुर्वेदा के बच्चे हैं वो 57 बच्चे हैं, हर बच्चे को 30,000. 17,10,000 रुपये. फिर 2 साल पहले हमारे प्रेसिडेंट मैम ने B.Ed के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की. उनके B.Ed के बच्चे वैसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो टीचर्स बने, और अगर हमें टीचर्स बनाना है हमारे होम में तो B.Ed के लिए स्कॉलरशिप देना बहुत ज़रूरी है. तो इसको सामने रखते हुए 40 स्टूडेंट्स को इस बार सेलेक्ट किया गया है फॉर B.Ed, और इसका टोटल अमाउंट है 6 लाख. फार्मेसी के 13 बच्चे, इनका 20,000 पर स्टूडेंट. लॉ के 5 बच्चे हैं, 20,000 पर स्टूडेंट. वेटरनरी साइंस जो एक 100% जॉब ओरिएंटेड गारंटीड कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब गारंटीड कोर्स है, इसके लिए 5 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है. और एग्रीकल्चर के 7 बच्चों को लिया गया है. तो दानिश ट्रस्ट जो है हमेशा यही चाहती है कि बस मेरिट वाले बच्चे भी नहीं बल्कि दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं. तो हमारे पास इस साल टोटल जो है बॉयज़ का परसेंटेज है 44.26 और गर्ल्स का 55.74%. बेंगलोर से सिर्फ 20% बच्चे चुने गए हैं. 80% बच्चे बेंगलोर से बाहर चुने गए हैं, और उन पूरों को स्कॉलरशिप जो है ऑनलाइन के ज़रिए डायरेक्ट अकाउंट में भेज दिया जाएगा. इस मरतबा जो बच्चे चुने गए हैं उसमें 73% जो है BPL कार्ड होल्डर्स हैं. मतलब ये बहुत ही कम पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, इनके पास BPL कार्ड है, पुअर लोग हैं. और इस मरतबा जो है 10 ऐसे बच्चे चुने गए हैं जो ऑर्फन्स हैं, उनके वालिदैन वालिद या वालिदा नहीं है. फिर ज़कात एलिजिबल, क्योंकि हमारे फॉर्म में आता है कंडीशन क्या आप ज़कात एलिजिबल हैं, वो जो है 76.6%. तो रियासत के सारे डिस्ट्रिक्ट से जो है बच्चों ने अप्लाई किया है. कुल मिलाकर 811 बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें हमने 250 बच्चों को सेलेक्ट किया है. तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आकर हैं वो बेंगलोर से, गुलबर्गा से, बीदर से, रायचूर, रामनगर, यहाँ से जो है फॉर्म्स आते हैं. हालांकि वो मुस्तहिक़ खुद हैं, लेकिन शरीयत में उन्हें ज़कात या फितरा नहीं दिया जा सकता. ऐसे बच्चों के लिए क्या भैया इसका जो है मैं सिर्फ 2.5% ज़कात है. अगर तुम्हारी कमाई जो है 100 करोड़ हुई तो भी कितनी ज़कात काटना मालूम तुम? 2.5 करोड़. तो वो हिसाब से नहीं हो सकता. आई ट्राई टू गिव मोर. थोड़ा ज़कात का होता है, थोड़ा दूसरा भी होता है. लाइक दैट आई डिवाइडेड. तो ये पूरा फंड सिर्फ ज़कात का नहीं है? नहीं, इसमें ज़कात से आगे भी डालते हैं. लाइक सूर्य अलहम के वो सब वो सिखा देते हैं. जब बच्चे ये पढ़ते हैं
तो उनको दीनी तालीम का भी शऊर आना चाहिए। इवन दे कैन लर्न कुरान एंड इट्स मीनिंग फ्रॉम इंग्लिश ऑल्सो, वहाँ वो भी सीख सकते हैं। उसमें जो है उनको अवेयरनेस आता है। ये ज़रूरी नहीं कि अरबी ही अरबी में तो पढ़ना ज़रूरी है, उर्दू के माने वगैरह, मीनिंग यू कैन लर्न फ्रॉम इंग्लिश मीनिंग का भी कुरान शरीफ है। इससे ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते हैं, रख लेते हैं क्या लिखा है, अल्लाह क्या चाहता है, इसमें क्या हिदायतें हैं, ये सब कैसा पता चलेगा जब तक हम उसके माने इंग्लिश में या उर्दू में नहीं समझते। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा दीनी तालीम जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसके माने, दीन के बारे में जाने। और हाँ, कितने पैगंबर वगैरह गुज़रे हैं, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री, सीरत के बारे में जाने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी कौम को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है दलित से भी कम है, उनका जो परसेंटेज है एजुकेशन में उससे भी है बिहाइंड। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। हमारी तरक्की का मेन जो है पढ़ के सिर्फ जॉब करना नहीं है, तुम बिज़नेस भी कर सकते हैं, यू विल हैव ए ब्रॉडर विजन। तो इस हिसाब से ज़रूरी है कि हर बच्चा हो बच्ची हो, दोनों को भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, जब हम एक लड़की को एजुकेट करते हैं, आई फील दैट when you educate a boy, you educate an individual. When you educate a girl, you educate the whole family. तो वो माँ का पढ़ना, लड़की का पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने फैमिली बच्चों को पढ़ाएगी, नसीहत करेगी। बाप जो है कमाने में, दूसरे चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, माँ को ज़रूरी होता है कि वो देखभाल करें, इल्म की तरफ ध्यान दें। निजी तौर पर आपको कितनी खुशी होती है इस खिदमत में? बहुत खुशी होती है। थैंक यू। आपके वालिदैन, आपके आबा अजदाद ने कौम को तालीम याफ्ता बनाने की एक जिम्मेदारी उठाई है, लगातार उन्होंने करते भी आया। ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और आपके दादा नानी ग्रैंड पेरेंट्स। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि नानी ने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो मुझे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कि आई विल बी द सेक्रेटरी और उनकी मैं मदद करूँगी। आई हैव वेरी बिग शूज़ टू फिल, बट इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि वो मुझे हेल्प करे। और जैसे हमारी नानी, हमारे नाना और हमारी पूरी फैमिली जो चैरिटी करती है, तो मैं उसके बरकरार रखूँ एंड आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। नए दौर के साथ नई प्लानिंग होती है, क्या कुछ नई तैयारियाँ की गई हैं? अभी तक तो कुछ ऐसे साथ आके सीख रहे हैं जी। एंड चेक्स वगैरह साइन करने का इसको बताई हूँ। एंड आई टोल्ड हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर द फंड्स विल कम, हाउ शी हैज़ टू डू। क्या मैसेज है पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के? वो तो कि आई हैव टॉट हाउ शी इज़ गोइंग टू मैनेज। मेरी मैसेज यही है यूथ को कि आप पढ़े, दिल लगा के पढ़े एंड अल्लाह से दुआ कीजिए, हर कहीं ना कहीं से ज़रिया निकल जाएगा फाइनेंशियल का इंशाल्लाह। और नानी है, हम है, वी विल हेल्प यू, जस्ट स्टडी, वर्क हार्ड। एंड पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आपके बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें प्यार दे, उन्हें इनकरेज करें, ख़ासतौर पे जो लड़की बच्चियाँ हैं उनके लिए। डोंट स्टॉप द एजुकेशन, इफ़ दे रियली वांट टू स्टडी एंड दे रियली वांट टू डू वेल एंड दे हैव द ग्रेड्स, then please encourage them so that they do well. They are our future. वेरी गुड। यू स्पोक। दानिश की जानिब से जो आपको हेल्प मिली है, तो दानिश को आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के इदारों को? अल्हम्दुलिल्लाह, आई फर्स्ट लाइक टू थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह जिन्होंने मुझे दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट का पार्ट होने का मौका दिया। और आई आल्सो लाइक टू थैंक ऑल द मेंबर्स, ट्रस्टीज़ एंड प्रेसिडेंट्स जो इस इदारा को चलाने वाले हैं। दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट एक ऐसा फाउंडेशन है जो होनहार बच्चे, टैलेंटेड बच्चों को आगे लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अक्सर बच्चे टैलेंटेड होते हैं मगर फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं। Like there are students who are highly motivated, highly talented, but they are unstable due to financial conditions, or they have lost their parents, or any circumstances they would have faced.
earlier. So they are facing lot of problems to pursue their ideal goal, or the goal which is a bit hard without having a financial stability. So I think that the best job done by Danish Educational Trust is providing financial stability to those students who are deserving, and helping them and motivating them and guiding them to achieve their goals and have a good life in the future and have a good vision. Thank you. दानिश की जानिब से है स्कॉलरशिप आपको मिली है, आपकी जो एक हिम्मत अफजाई भी की गई है, तो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या जो है आपके तासुरात रहेंगे, फीडबैक्स? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डैनिश ने मुझे इस स्कॉलरशिप के लिए चुना है। 250 स्टूडेंट्स में 25 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है और 25 स्टूडेंट्स में मैं हूँ, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ और चाहती हूँ कि और भी फर्दर स्टूडेंट्स को डैनिश वाले मदद करें। तो मुस्तकबिल में क्या प्लान्स हैं आप इस तरह जो है लाइफ में करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और सोशल सर्विस भी करना चाहती हूँ। दानिश के लिए आपको पता चला कि ऑनलाइन पोर्टल्स में मुझे पता चला कि डैनिश वाले ऐसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैंने अप्लाई किया और उन्होंने सेलेक्ट किया है 25 स्टूडेंट को। थैंक यू। दानिश की जानिब से जो आपको हेल्प हुई है उससे आप किस तरह से देखते हैं और क्या जो है आपके तासुरात हैं? इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। मेरे इंजीनियरिंग की जो फ़ीस है और हॉस्टल का जो ख़र्चा है, इसका इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा और एक ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन और एक एनकरेजमेंट है मेरे लिए और मेरे फ्यूचर एंडीवर्स के लिए, और इससे मैं फ़ायदा उठा के अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए कुछ मदद करूँगा इंशाल्लाह। क्या प्लान्स क्या हैं, क्या बनने का इरादा है? मैं इंशाल्लाह IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ।